شہر حیدرآباد میں جہاں پچھلے مہینے بارش نے تباہ کاریاں مچائی تھی، جہاں شہر کے کئی علاقے سیلاب کی زد میں آ کر شہریوں کو لاکھوں روپے مالیاتی نقصان پہنچایا ہے، کئی افراد بے گھر ہو گئے ہیں۔ سیلاب سے متاثرہ علاقے اب تک معمول پر نہیں لوٹ پائے ہیں۔ یہاں مقیم افراد کے تمام ساز و سامان پانی میں بہہ گئے۔ کئی ایسے خاندان بھی ہیں جن کے پاس صرف آنگ پر موجود کپڑے ہی بچے ہیں، اور ستم ظرفی تو یہ ہے کہ حکومت کی امداد بھی ان بے بس اور سیلاب کی مار سہ رہے افراد میں تقسیم عمل میں نہیں لائی گئی۔ ایسے میں سیاست ملت فنڈ اور فیض عام ٹرسٹ نے شہر کے سیلاب سے متاثرہ علاقوں میں بازآباد کاری کا بیڑا اٹھایا ہے۔ فیض عام ٹرسٹ اور سیاست ملت فنڈ نے شہر کے سیلاب سے متاثرہ علاقوں کا معائنہ کرتے ہوئے یہاں کے پریشان حال افراد میں راشن، کپڑے، گھریلو ساز و سامان، نقد رقم، بلینکٹس وغیرہ تقسیم کر رہے ہیں، اور اب تک شہر کے متعدد علاقوں میں یہ تقسیم عمل میں لائی جا چکی ہے۔ آج اس خصوص میں شہر حیدرآباد کے چندران گٹا حلقے کے ہاشم آباد علاقے میں عروج ماڈل اسکول میں 100 سے زائد افراد میں کپڑے، تکیے، بستر، بیڈ شیٹ، نقد رقم پر مشتمل کٹس جناب زاہد علی خان ایڈیٹر سیاست اور سیکریٹری فیض عام ٹرسٹ جناب افتخار حسین کے ہاتھوں متاثرین کے حوالے کیا گیا۔ جناب زاہد علی خان ایڈیٹر سیاست نے اس موقع پر اعلان کیا کہ سیاست اور فیض عام ٹرسٹ کی جانب سے بارش سے متاثرہ افراد کے بچوں کو تعلیم سے آراستہ کرنے کے لیے بھی مدد کی جائے گی، اور جو کاروبار تباہ ہو گئے ہیں ان کے لیے بھی مالی تعاون کیا جائے گا۔ بہت جلد ان اعلانات پر عمل آوری ممکن ہے۔ احمد کالونی، جس میں ایک خاندان کے 7 افراد بے گھر ہو گئے تھے، وہاں کے علاقے کی عوام اور بشار نگر، کبگیر نگر کی عوام میں یہ کٹس کی تقسیم عمل میں لائی گئی۔ پروگرام کا آغاز جناب ڈاکٹر شوکت علی مرزا نے کیا۔ اس موقع پر انہوں نے پروگرام کے تفصیلات سے حاضرین جلسہ کو واقف کروایا۔ پیش ہے اس خصوص میں ہمارے نمائندے عبد المکرم کی تفصیلی رپورٹ۔ انصار احمد صاحب، جناب علی احمد صاحب، جناب جسٹس ای اسماعیل صاحب، قرار احمد طاہر، ڈاکٹر مخدوم محی الدین صاحب، سید حیدر علی صاحب، ڈاکٹر ابراہیم صاحب اور محترم جناب افتخار حسین صاحب، سیکریٹری فیض عام ٹرسٹ سے میں گزارش کرتا ہوں کہ وہ اسٹیج پر تشریف لائیں۔ جو پھر سے ایک مرتبہ اس علاقے میں جمع ہوئے ہیں، ان لوگوں سے ملاقات کرنے کے لیے جو پچھلے کچھ دن پہلے حیدرآباد میں آئے ہوئے سیلاب سے متاثر ہوئے ہیں۔ ہمیں اندازہ ہے کہ کس طریقے سے آپ کے گھر، آپ کے گھریلو سامان اور ہو سکتا ہے کہ آپ کے گھر والوں کی معیشت بھی نقصانات دیکھ چکی ہوگی۔ ہمیشہ کی طرح سیاست اور فیض عام ٹرسٹ ہر مشکل وقت میں آپ کے ساتھ رہتے ہیں۔ اس مرتبہ بھی جب فساد کی، سیلاب کی خبر ملی اور مختلف علاقوں سے مال کے نقصانات کی، مکانات کے نقصانات کی جیسے جیسے خبر آ رہی تھی، مسلسل کوشش کی جا رہی تھی کہ ان علاقے کے لوگوں کو جمع کر کے ان کے درمیان جو چیزیں ان کی نقصان ہوئی ہیں، جن کا مکان، جن کا سامان ضائع ہوا ہے، ان کو حتی الامکان مدد کی جائے۔ معزز حاضرین، علامہ اقبال نے بھی کہا تھا کہ درد مندوں کی مدد کرنا ہر انسان کا فرض ہے۔ کوئی اس میں کوئی بڑی بات نہیں ہے کہ اس کام کو آگے بڑھانے کے لیے جو کچھ بھی ہم کر رہے ہیں، چاہے وہ فیض عام ٹرسٹ ہو یا ہمارا ملت فنڈ ہو، اس کے ذریعے جو کچھ بھی ہو سکتا ہے، ہماری یہ کوشش ہے کہ اور بھائیوں اور بہنوں کو جو سیلاب سے تکلیف ہوئی ہے اس کے لیے مدد کرنا ہم اپنا فریضہ سمجھتے ہیں۔ اسی لیے یہ کام کووڈ سے شروع ہوا تھا۔ کووڈ کے موقع پر بھی ملت فنڈ کی جانب سے اور افتخار صاحب کے فیض عام ٹرسٹ کی جانب سے تقریباً روزانہ 200 سے 300 لوگوں کو
मुफ्त खाना पकाकर खिलाया गया रोज़ाना। तकरीबन ये 4 महीने की बात है कि 5 महीने की बात है कि ऐसे इलाक़ों पे जहाँ पर कोविड का ज़्यादा असर था, उन इलाक़ों में से हम खाना बनाकर आप लोगों में तकसीम किया था। और मुझे अभी पता चला है कि 2 रोज़ सबल कब खिलाए, 2-3 रोज़ सबल भी इस इलाके में भी तो उसका अहतमाम किया गया था। देखिए, ये अल्लाह ताला की एक नेमत है कि हम अपने भाइयों और बहनों को जो मुश्किलात में गिर जाते हैं, ऐसे आफाकी मुसीबतें जो आती हैं, उसमें हमारा फ़र्ज़ बनता है कि हम अपने हैसियत से जो भी मदद कर सकते हैं वो मदद करने के लिए अपने आप को पहले से तैयार रखें। और पहले दिन ही से जिस दिन से आप लोगों को ये मुसीबत आ पड़ी है, उसके लिए हमने तकरीबन 1 महीने से ये रिलीफ का काम भी किया है। मैं इफ्तिखार साहब ने बताया कि मुजफ्फरनगर से लेकर बिहार में, फिर उसके बाद कश्मीर में और दीगर मुकामात पर भी ऐसा सैलाब आया था। एक बार कश्मीर में ज़लज़ला आया था जिसकी वजह से सारे मुस्लिम लोगों का वहाँ पर जो घर थे वो घर तबाह हुए और वहाँ पर सैलाब से मुतासर, हत्ता कि दवाखाना भी मिलत फंड ने एक हैदराबाद हॉस्पिटल ऐसो कश्मीर में कायम किया। तो हम जो काम हमसे हो सकता है हम उसके करने के लिए तैयार हैं। पुराने शहर की एक बेटी को हमने इफ्तिखार साहब और सियासत में मिलकर उस बच्ची को आज पायलट बना दिया है। वो इंडिगो में काम कर रही है और जिसको तकरीबन 1.5 लाख रुपए माहाना तनख्वाह मिलती है। एक बेकरी में काम करने वाले शख्स की बेटी आज इंडिगो में अगर वो पायलट बनी है तो ये न सिर्फ हमारे लिए बल्कि सारे हैदराबाद के लिए एक बहुत बड़ी पहली मुसलमान लड़की है जो पायलट बनी। तो मैं ये चाहता हूँ कि आप लोग जो है वो भी तालीम के लिए अपने बच्चों को तैयार करें, बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा तालीम दिलाएं। बच्चों को आला तालीम इसलिए ज़रूरत है आज ख़ास तौर से बच्चों को कि आज माशरे में सबसे ज़्यादा अगर कोई मुसीबत उठा रही है तो हमारी घर की लड़की है। तो लड़की को इस काबिल बनाइए कि वो कमाने के काबिल बन जाए। उसकी तालीम के लिए भी हमारे पास फंड है, फंड के जरिए भी और इसके अलावा इफ्तिखार साहब के जरिए भी आपको ऐसे लड़कियों के लिए खास तौर से, क्योंकि हम दोनों मिलकर और बेशुमार हैदराबाद के गरीब लोगों को इंजीनियरिंग की तालीम दिलाई, डॉक्टर्स बनाया। अभी तकरीबन 3 डॉक्टर्स ऐसे हैं जिनको सरकारी दवाखाने में दाखिला मिला। तो ऐसे काम के लिए हम ये चाहते हैं कि इन इलाके के लोगों को आगे बढ़े और आप तो इस बात की कोशिश करें कि अपने बच्चों को आला से आला तालीम दिलाएं। उसके लिए हम हर वक्त तैयार हैं। आपके पास आप एक फ़ोन कर दीजिए, फ़ोन करें तो हमारे वॉलंटियर्स आपके पास आएंगे, आपके बच्चे क्या तालीम हासिल कर रहे हैं फिर तफसीलात लेंगे और किस तरह आपकी मदद करना है उसकी हम बेहद कोशिश करेंगे। मैं इन चंद अल्फाज के साथ आप सबका भी खैर मक़दम करता हूँ और वॉलंटियर से कहता हूँ कि वो ये डिस्ट्रीब्यूशन का काम शुरू करें। की तरह आज फिर फंड और फैजियान की आपके महल्ले में मौजूद है और यहाँ की जो मसाइल उसकी कुछ पासबाई की जो भी सूरत नज़र आ सकती है, जितना भी अक्ल मकदूर हम लोग कर सकते हैं इंशाअल्लाह आपके सामने हाजिर कर रहे हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि हर मुसीबत के वक्त चाहे वो मुजफ्फराबाद का हो या कश्मीर का हो या फिर दिल्ली के जो हादसा फसादात हुए हैं वहाँ पर
लोग परेशान हाल थे, उनके कारोबार ख़त्म हो गए थे, दुकानें लूट गई थी, वहाँ भी अल्हम्दुलिल्लाह क़याम ट्रस्ट और सियासत ने मिलकर काफ़ी लोगों को अपने पैरों पर खड़ा किया। इसी तरीके से हम लोग जब से सैलाब का वाक़या हुआ और उससे पहले भी कोविड जब ये मर्ज शुरू हुआ उस वक्त भी हमने कोशिश की और हमने वो चीज़ें मुहैया की जो उस वक्त के लिए ज़रूरी थी। टीचर्स के प्रॉब्लम्स को भी हमने दूर किया जितना भी हो सकता था। वो प्राइवेट टीचर्स जिनकी तनख्वाहें बंद हो गई थी, मिलना बंद हो गई थी, वो कस्बा पुरसी की हालत में थे, उनके पूरा सर्वे करके उनके पास राशन किट्स और दूसरी चीज़ें उनको पहुंचाई गई। इसी तरीके से जब ये हालिया सैलाब का वाक़या हुआ है, इसके बारे में पहले ही डॉक्टर शौकत मिर्ज़ा साहब आपसे बता चुके हैं। ये मदद जो भी हो रही है वो ज़ाहिरन आपकी पूरी तकलीफ़ को दूर नहीं कर सकती, इसका हमें एहसास है, लेकिन जो भी हो सकता है, जितना भी हो सकता है, हम हर जगह पर, हर महल्ले में जहाँ जहाँ भी मुमकिन है वहाँ पर सर्वे कराकर जो भी ज़रूरतें हैं वहाँ पर हम जो है मुहैया करने की कोशिश कर रहे हैं। उसी की एक कड़ी आज इस महल्ले में हम हाजिर हुए हैं और दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला आप लोगों को जो तकलीफ़ हो किसी हद तक उसमें कमी हो जाए। हमारा मकसद ये है कि लोग ये इमदाद को हासिल करके और अपनी परेशानियों को दूर करके फिर अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी की तरफ वापस आए। और क़याम का मकसद भी यही है कि लोगों की बाज़ाबातकारी करें और उनके बच्चों की पढ़ाई वगैरह की तरफ इंशाअल्लाह कोशिश करके हम आगे बढ़ते हैं। इन सब अल्फाज के साथ मैं आप सबके ताउन का बहुत बहुत शुक्रगुज़ार हूँ और हमारे ताउन जो लोगों ने किया है इसके लिए भी मैं चलो आप आओ नहीं आप अरे आपको नहीं जो आ रहे उनको देखो, हम लोग वहाँ मलगी में बैठे थे। मलगी में बैठ के हमारे को बहुत तकलीफ हुई, पानी डूबा हुआ था। जब हम इधर आए तो इन भैया ने हमारे को हेल्प किया। हेल्प करने से हमको घर मिला। ला लेके जाके घर भी दिला के हमें को सही सलामत। घर के पैसे कौन दिया माँ? ये भैया दिए। वो नहीं आता हमको एडवांस करके किराया देके हमारे को घर दिखा के रखे। अभी आप घर में शिफ्ट हो गए? हाँ, शिफ्ट हो गए। अभी आपका कैसा है सामान वामान सब रहने करने का? हाँ, सभी है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं मोहम्मद ज़मीर बात कर रहा हूँ। मेरे घर में पानी आ गया। मैं कौन से एरिया में? मैं कबीर नगर में रहता हूँ। पानी आ जाने से मुझे नुकसान होगा। फ्रूट का क्या क्या नुकसान हुआ आपका? पूरा फ्रिज, वॉशिंग मशीन, टीवी और बिस्तर वगैरह सामान सौदा नुकसान हो गया। आप क्या काम करते हैं? फ्रूट का कारोबार करता था। मेरी बड़ी थी, छोटे छोटे बच्चे हैं मेरे, 3 बच्चे हैं, दीदी अम्मी अब्बा है, आंटी का फोन है। कबीर नगर में रहता हूँ। पानी बहुत खतरनाक आया। बोलिए अम्मा, क्या क्या लॉस हुआ आपका? क्या क्या हुआ? फ्रिज गई, वॉश मशीन गई, पूरा सामान सतरा हो गया, पूरे बिस्तर गद्दे उद्दे सब चले गए। कौन सा एरिया है अम्मा आपका? अहमदनगर। अहमदनगर। हाँ, अच्छा, ये आज जो मदद हो रही है आप लोगों को, बहुत बहुत शुक्रिया। कितने बार भी अभी तक ऐसा मदद हुआ? ऐसा तो पूछे मत। हाँ, अब तो कोई सी चीज़ जहन में नहीं रहती बेटा। अब सब गाँव में छः नहीं है, हम 3 जने छः घर। हाँ।